Good morning everyone. Welcome back to SST class. Now children, in this video we will learn about the Southern Plateau. What is the Southern Plateau? Okay. Look at here. Southern Plateau. Okay. Southern Plateau we also called as Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. Now my first question is, what is peninsular? What is peninsular? The peninsular, a land mass which is surrounded by the water three sides. ठीक है? Peninsular. What is peninsular? A land mass which is surrounded by the water three sides. 1, 2 and 3. ठीक है? It is surrounded by the three side. It is called a peninsular. And plateau. What is plateau? Plateau, a large area of land that is higher than the surrounding. ठीक है? A large area of land that is higher than the surrounding and less flat at the top. And less flat. Look at here. This is a plateau. Less flat at the top. It is called a plateau and also known as table land. ठीक है? Also known as table land. Look at here. Now children, look at here. This is the table and this is the floor and it is higher. It is higher than the floor and flat at the top. So that's why we also known plateau as a table land. Is that clear? Now, next, Southern Plateau. What is Southern Plateau? Southern Plateau. Okay, Southern Plateau lies to the south of the north. ठीक है? This is a north directions. ठीक है? Southern Plateau lies to the south of the northern plains. ठीक है? ये this is a northern plains and Southern Plateau lies south of the northern plains. This is a northern plains and this is a north directions and this is a south directions and Southern Plateau. Southern Plateau lies south of the northern plains. ठीक है? Northern plains. This area is like a cone. You can see that the Southern Plateau like a cone or triangular shape. I know everyone have seen the ice cream cone. The ice cream cone is like this. ठीक है? And the shape of the Southern Plateau is like a cone or triangular shape. Triangular shape like this. ठीक है? Southern Plateau, the shape of the Southern Plateau is like a cone or triangular shape. Southern Plateau is rocky and uneven. It is a elevated land. It is a uneven. ठीक है? It is not a fertile land as northern plains. It is a uneven and rocky area. ठीक है? Like desert. Now, the Southern Plateau is bordered. Southern Plateau is bordered by the Aravalli hills. This direction is a west directions, north west. Okay, Southern Plateau is bordered by the Aravalli hills is northwest. Rajmahal Hills is a northeast.
ईस्ट. राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट. ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट. ठीक है. Why we call the eastern ghat and western ghat? The name of the eastern ghat, the direction of east direction, that's why it is called the eastern ghat, and western ghat, the direction of west, so that's why it is called a western ghat. So southern plateau is bordered by the Aravalli Hills in northwest. Okay, Rajmahal Hills is northeast, eastern ghat and western ghat. Clear? Clear everyone? Okay, now let's continue. Sorry, next comes to the next point. Narmada River. Narmada River divide the southern plateau. ठीक है. Narmada River. This is a Narmada River. Narmada River. ठीक है. Narmada River divide the southern plateau into two parts. Narmada River. ठीक है. Narmada River divide southern plateau. Southern plateau divide southern plateau into two parts. ठीक है. Two parts. First is a central highland. and Deccan Plateau. ठीक है. Narmada River divides the southern plateau into two parts. First is a central highland and second is a Deccan Plateau. ठीक है. Now look at here, children. This is a Narmada River. Look at here, Narmada River. ठीक है. Narmada River divides the southern plateau two parts. Central highland. Okay, look at here. This is a central highland and Deccan Plateau. Narmada rivers divide the southern plateau into two parts. If I ask the question which river divide the southern plateau into two parts, then you give the answer Narmada River. ठीक है. Narmada River divide the southern plateau into two parts, central highland and Deccan Plateaus. Okay. Now first I will explain the central highland. About the central highland. ठीक है. I will explain the first part of central highland. Central highland. ठीक है. Central Highland. Central Highland includes the Malwa Plateau. Central Highland includes the Malwa Plateau. Malwa Plateau in a northwest. ठीक है. यहाँ पर क्या है आपका बच्चों? मालवा प्लेट्यू. ठीक है. ये आपका ऊपर क्या हो गया? सेंट्रल हाईलैंड.
सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, हाईलैंड। एंड सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड्स मालवा प्लेट्यू, Malwa Plateau. The direction of Malwa Plateau is northwest, ठीक है। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। Central Highland include the Malwa Plateau in northwest and Chota Nagpur Plateau in the northeast. Malwa Plateau lies between the Aravalli Hills. Malwa Plateau. Malwa Plateau lies between the Aravalli Hills and Vindhya Hills, ठीक है, Vindhya Hills. Malwa Plateau lies between the Aravalli Hills and Vindhya Hills. Okay, it includes part of the Rajasthan and Madhya Pradesh. Malwa Plateau includes the part of Rajasthan and मध्य प्रदेश, ठीक है। मालवा प्लेट्यू इंक्लूड द पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज इन द रीजन्स आर ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल। मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। मेजर पार्ट, इट इज अ मेजर पार्ट मेक्स द सेंट्रल हाईलैंड। कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ, Satpura at south and Aravalli on the northwest, ठीक है। Covered by the Vindhya at north, Satpura यहाँ पर आपका है सतपुरा, ठीक है, सतपुरा at south and Aravalli northwest, ठीक है, Aravalli is northwest. Rivers such as Chambal, the Sindh, Betwa and the Ken flow from the southwest to southeast, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, रिवर्स हैं। तो ये आपकी रिवर्स क्या है बच्चों, कौन कौन सी रिवर्स हैं? चंबल, सिंध एंड बेतवा। केन साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ वेस्ट से क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और ये ऐसे फ्लो क्यों करती हैं बच्चों, देखो जैसे ये है, ठीक है। तो ये जो नदी इस तरफ इसलिए फ्लो करती है, ये थोड़ा सा ऐसे क्या है, लिटिल बिट क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा कैसा है, ये टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने के कारण क्या है, रिवर्स क्या करती है, साउथ ईस्ट की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ये जैसे आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये हल्का सा ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से, जैसे ये सदर्न प्लेट्यू है ना आपका, ये आपका सदर्न प्लेट्यू है, तो ये हल्का सा यहाँ से कैसा है, ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। तो ये टिल्टेड है साउथ ईस्ट की तरफ। तो जो यहाँ की रिवर्स है, रिवर्स फ्लो करती है साउथ ईस्ट में। कहाँ फ्लो करती है, साउथ ईस्ट में। और कौन कौन सी रिवर है, चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है। तो ये हल्का सा कैसा है, टिल्टेड होने के कारण क्या है, जो रिवर्स है, रिवर्स फ्लो इन द साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। ऐसे हल्का सा टिल्टेड होने के कारण रिवर्स फ्लो करती है साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, ठीक है। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाइडर इट मीन्स बड़ा, ब्रॉड, ठीक है। वेस्ट की तरफ ये कैसा है, बड़ा है। लेकिन ईस्ट में अगर ये जाता है तो ईस्ट की तरफ ये कैसा हो जाता है, नैरो। देखो वेस्ट की तरफ ये कैसा है, इतना चौड़ा, ठीक है। वेस्ट की तरफ ये कैसा है, ऐसे। अब ये ईस्ट की तरफ आता है तो ईस्ट में ऐसे नैरो हो जाता है, ठीक है। तो जो मालवा प्लेट्यू है, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट,
ठीक है, नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, ये किस नाम से भी जाना जाता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, now comes to the next point is a छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज मेक्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका कहाँ पर है, ईस्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का। एंड मालवा प्लेट्यू ईस्टवर्ड है वेस्ट का। ठीक है, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, मालवा आपका कहाँ पर है बच्चों, वेस्ट में, और आपका छोटा नागपुर कहाँ है, ईस्ट में। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स मच ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे देखो छोटा नागपुर बच्चों आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये ईस्ट में आपका छोटा नागपुर है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का। अब इसमें इंक्लूड है आपका झारखंड। कौन कौन से पार्ट्स आपके इसमें इंक्लूड हैं, झारखंड। ठीक है, क्लियर, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स द बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। 1 2 3 4 5 बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इट इज इंक्लूड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इट इज द इंक्लूड बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, क्लियर। एंड दिस पार्ट इज रिच ऑफ मिनरल्स। ठीक है, दिस पार्ट आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल। ठीक है, जो ये पार्ट है ये आपका इस पार्ट में क्या है, आपको मिनरल्स, कोल, आयरन, ठीक है, माइका, मैग्नीज, ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कोल माइंस आर प्रेजेंट इन गिरिध, बिहार। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट कोल माइंस ये आपको बिहार में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे। गिरिध एक जगह है बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, क्या मिलेंगे, कोल। ठीक है, कोल माइंस आर प्रेजेंट इन गिरिध, बिहार। ठीक है, कोल माइंस, यहाँ पर आपको कोल के क्या है, और ये जो बिहार है, बिहार इज अ रिच स्टेट इन इस कोल। ठीक है, एंड झारखंड, झारिया एंड रानीगंज, वेस्ट बंगाल। झारिया in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. Two of Indian largest steel plants are located where? Bokaro, Jharkhand and Bhilai, Chhattisgarh. Bokaro, Jharkhand, Bokaro. Look at here, Bokaro. ठीक है, 2 ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत बड़े क्या हैं, आपके सबसे बड़े स्टील प्लांट्स हैं। बोकारो कहाँ है आपका बच्चों, झारखंड, एंड भिलाई इन छत्तीसगढ़। भिलाई आई एम नॉट सीइंग भिलाई, वेयर इज अ भिलाई, बिलासपुर। ठीक है, भिलाई इन छत्तीसगढ़। 2 इम्पॉर्टेंट स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन झारखंड, बोकारो इन झारखंड एंड भिलाई इन छत्तीसगढ़। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ पन्ना इज मध्य प्रदेश हैज डायमंड माइंस। ठीक है, पन्ना इज मध्य प्रदेश हैज डायमंड माइंस। यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है, पन्ना एक जगह है, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डायमंड होते हैं। ठीक है, डायमंड माइंस हैं पर सबसे ज़्यादा। ठीक है ना,
Next topic is Deccan Plateau. Triangular landmass lying south of the river नर्मदा. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू आपको बताया है. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, फिजिकल फीचर्स. ठीक है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, आपका ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू. तो डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू ये आपका वेस्ट से कैसा है बच्चों, हायर है, और ईस्ट में जाकर के आपका कैसा है, स्लोप है. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो. ठीक है, ये ऐसे हायर है. वेस्ट में आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू कैसा है, हायर है, लेकिन ईस्ट में जाकर के ये कैसा है, स्लोप है. ठीक है, ये एलिवेटेड है, एलिवेटेड लैंड है, तो ये थोड़ा जमीन से क्या है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है. ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, ये देखो. ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, तो ये यहाँ से ऐसे उठा है, वेस्ट की तरफ से ऐसे उठा है, और फिर ईस्ट में आप ये देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन है, और ईस्ट में इसमें कैसा है, स्लोप है. ठीक है, an extension of these plateau in also found in northeast. मेघालय प्लेट्यू, मेघालय बच्चों, मेघालय आपका कहाँ पर है, यहाँ आपका ईस्ट में क्या है, मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. इट इज बाउंड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. ठीक है, आपको यहाँ पर बताया था, ये आपका क्या है, ईस्टर्न घाट है. ठीक है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. इट कवर्स पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश. ठीक है, इट कवर्स डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू आपका क्या है, कवर्ड करता है. देखो यहाँ पर अगर आप इसमें, ये तो बच्चों आपका पॉलिटिकल मैप है. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, तो ये इसको स्टेट को अगर हम हटाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है. ठीक है, तो इट कवर्ड्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका. ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो ये यहाँ से बच्चों ये इस तरीके से है बना हुआ. ठीक है, ये ऐसे डेक्कन प्लेट्यू आपका बना है. तो इट कवर्स डेक्कन प्लेट्यू बाउंडेड बाय द वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. ठीक है, इट कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. क्लियर, क्लियर एवरीवन. देयर आर अ नंबर ऑफ रिवर्स इन द रिवर. देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स इन दिस एरिया. ठीक है, इस एरिया में क्या है बच्चों, आपको बहुत सी रिवर्स मिलेंगी, जैसे आपका महानदी, कावेरी. ठीक है, महानदी, कावेरी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो ये आपकी रिवर्स है, महानदी, कावेरी, गोदावरी. ठीक है, तो ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो करती हैं. ठीक है, ये जो रिवर्स है आपकी, ये ऐसे फ्लो करती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा. देखो गोदावरी है बच्चों, ये देखो गोदावरी, ये यू कैन सी दैट गोदावरी. ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, महानदी फ्लो वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ को फ्लो करती हैं, और ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो करती हैं आपको बताया था. तो ये कैसा है, वेस्ट की तरफ से ऐसे
टिल्टेड है, ठीक है, हल्का सा कैसा है, टिल्टेड है, तो दैट्स वाई द रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, क्लियर, एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, लास्ट में ये रिवर्स कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द लैंड is the Deccan Plateau slopes from the west to east. As I told you that the west part is a little bit tilted to the east. ठीक है, that's why these rivers flow west to east. Okay. The river in the Deccan Plateau are not fed by the melting snow. ठीक है, अब जो ये रिवर, जो यहाँ पे रिवर्स हैं, ठीक है, जो ये डेक्कन प्लेट्यूज में जो ये रिवर्स हैं, इट इज़ नॉट, अब आपको एवरीवन नोज दैट कि ये एरिया क्या है, आपका माउंटेनियर एरिया नहीं है, ठीक है, माउंटेन्स आपके कहाँ पर हैं, ये एरिया आपका माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, ठीक है. तो जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इज़ नॉट फेड, ठीक है, रिवर्स विच आर फ्लो इन डेक्कन प्लेट्यू इज नॉट फेड बाय मेल्टिंग स्नो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ये रिवर्स फ्लो कर रही हैं ये स्नो से मेल्ट नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पर माउंटेन्स है, तो यहाँ पर जब स्नो क्या होता है, स्नो मेल्ट होता है तो वो नीचे आता है फ्लो करते हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, दे आर फेड बाय रेन, जो यहाँ पे रिवर्स हैं तो वो किससे बनी है, रेन से. देयरफॉर दे हैव वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग द समर. अब देखो बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली रेन रिवर्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, और समर्स में क्या होता है, बारिश कम होती है, गर्मी में बारिश कम होती है, तो उस टाइम पे दैट टाइम रिवर्स वर ड्राई, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. और जो रेनफॉल होती है तब कैसे होते हैं, तब वो कैसे हो जाती है, भर जाती है, किससे, वाटर से, ठीक है. इस रिवर्स को हम कैसे रिवर्स कहते हैं बच्चों, सीजनल रिवर्स. The rivers in the region flow much faster than the rivers of the northern plains. ठीक है, the rivers in this region flow much faster. ठीक है, जो अब इस डेक्कन प्लेट्यूज की जो रिवर्स हैं ये बहुत कैसी हैं, फास्टर हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स हैं वो थोड़ा सा कैसे हैं, स्लो फ्लो करती हैं, ठीक है. सिंस द लैंड इज अनइवन, अब एज आई टोल्ड यू द डेक्कन प्लेट्यूज लैंड इज अनइवन एंड रॉकी, ठीक है, बिकॉज द डेक्कन प्लेट्यू इज एलिवेटेड लैंड. एलिवेटेड इट मीन्स कि जो जमीन से क्या होता है, थोड़ा उठा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एलिवेटेड. अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, द जॉग फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको बहुत से फॉल्स मिलेंगे. जॉग फॉल्स आपका on the Saravati rivers, jog falls on the Saravati rivers in Karnataka in the highest waterfall, ठीक है, जॉग फॉल कहाँ है आपका, कर्नाटका में, ठीक है, ये हाईएस्ट रिवर फॉल है, कर्नाटका में आपकी जॉग फॉल है, और ये क्या है आपकी हाईएस्ट क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है. रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड Kaveri from deltas from flowing into the Bay of Bengal. These areas are especially good for rice cultivations. Large part of the Deccan Plateau have black soil where cotton and sugarcane grow very well. ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू का क्या है, लार्ज पार्ट है, तो वो कैसा है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, वेयर कॉटन एंड सुगर, इट इज़ वेरी गुड फॉर growing cotton and sugarcane. Dams have been built across many rivers. The Mattur Dam on the Kaveri is the largest irrigation project in South India. Other famous dams are Nagarjun Sagar Dam. ठीक है, Nagarjun Sagar Dam is built on the river Krishna. ठीक है, नागार्जुन सागर डैम कहाँ बना है, कृष्णा रिवर्स के ऊपर. द हीराकुंड डैम on the river Mahanadi and Bhakra Nagar Dam on the Satluj.
द स्टोर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। जो डैम का वाटर है ये किस लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू, the Deccan Plateau has rich deposits of minerals like iron, gold and mica, ठीक है। Deccan Plateau has rich deposit of minerals like iron, gold and mica. The Kolar gold mines and the Hutti gold mines in Karnataka are the two famous gold mines of India. Which is the two famous gold mines of India? The Kolar gold mines and the Hutti gold mines, and both are located in Karnataka, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, कर्नाटका में, ठीक है। ये देखो बच्चों यहाँ पर है, ये यू हैव सीन दैट जॉग फॉल्स, ठीक है। ये है बच्चों यहाँ पे जॉग फॉल्स है और ये सबसे बड़ा क्या है, वाटर फॉल्स है इंडिया का, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट, ठीक है, वाटर फॉल्स इन इंडिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया बच्चों, आपको पढ़ाया है सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, इतना आप लोगों को समझ आया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लाइफ इन द सदर्न प्लेट्यू। क्लियर एवरीवन? I hope you all are very well understand what is the southern plateaus, locations of southern plateau, what is a peninsular, what is a plateau, what is a Deccan plateau, the position of छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो आपको सबको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो if are not able to understand then you can ask the question in Zoom classes, ठीक है। Okay, thank you students, have a nice day.